Namaste students, I am Javin Dr. Aziz Mahmood Khan from Department of Food and Biotechnology, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapeeth University, Jaipur. Today I am going to discuss about the topic inhibition of starter culture by antibiotics. So the culture which is used for the fermentation process uh, have different kinds of inhibitors. Means the culture which is the microorganism which is found for the fermentation, which is used for the fermentation process, can be inhibited by various kinds of factors. Okay? Different factors which can inhibit the growth of microorganism, and similarly they can reduce the growth of microorganism. What are these factors? These factors include antibiotics, bacteriophages, detergents and disinfectant residues, and some other miscellaneous inhibitors. In this video, we are going to discuss about the inhibition of starter culture using antibiotics. So, antibiotics are the some important kinds of inhibitors which can inhibit the growth of various kinds of microorganisms. What are the antibiotics? Antibiotics are the some protein molecules which are secreted by the microorganisms to protect themselves. Okay, they microorganisms protect themselves from using the antibiotics, and these antibiotics will kill another another microorganism. So it is an antibiotics which is isolated from the microorganism for the protection of a microorganism to kill another microorganism. Okay, and these antibiotics, okay, these antibiotics can be used for the growth, for the inhibition of the growth of some microorganism. Okay, so we can use these antibiotics in food system also, so that we can prevent the growth of some microorganism. We can inhibit the growth of some microorganism so that our food can be uh, preserved. But in the case of starter culture, when there is a not necessary of the food microbes, then they need to be inhibited. How we inhibit them? We apply some antibiotics. ओके, सपोज हमने कोई फूड बनाया, हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उन वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो प्रेजेंट है उस फूड फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को हम इनहिबिट कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब इन एंटीबायोटिक्स के अंदर एग्जांपल्स क्या होता है? कुछ नेचुरल एंटीबायोटिक होते हैं जो फूड बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे स्टार्टर कल्चर होता है, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वी नीड ओनली दैट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बट वी डू नॉट नीड एनी अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हमें जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी ग्रोथ हमें रोकनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एंटीबायोटिक सेट करेंगे। लेकिन एक चीज और होती है इसमें, वन मोर थिंग इज दैट द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच आर एसिड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, नेचुरली इनके अंदर भी एक एंटीबायोटिक होती है जिसको हम बैक्टीरियोसिन कहते हैं। बैक्टीरियोसिन इज ए antibiotic which is present in the lactic acid bacteria to inhibit the growth of some undesired microorganism। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनको हम किलिंग के लिए हम बैक्टीरियोसिन जो एंटीबायोटिक है वो यूज कर सकते हैं। और
इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल भी हो सकते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, और जो फर्मेंटेशन को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरियम जो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरियम जो एंटीबायोटिक है वो क्या करेगा, जो अनडिजायर्ड जो हार्मफुल जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देगा। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो बहुत सारे वायरसेस को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। ठीक है, if an antibiotic has no effect, we say that the species of bacteria is resistant। मीन्स अगर बैक्टीरिया की तो जो एंटीबायोटिक हमने ऐड किया है, अगर उसके ऐड करने के बाद भी अगर ग्रोथ आती है तो हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर उसकी ग्रोथ नहीं आती है तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेंसिटिव है। These are some examples. For example, the penicillin is used for inhibition of pneumonia, tuberculosis. It is not for tuberculosis and it is not for the typhoid, but it can be used for the diphtheria also. तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन दो टाइप के बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंस है। इसी तरीके की स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए इफेक्टिव होती है, लेकिन दूसरी डिजीज के लिए वो इफेक्टिव नहीं होती है। टेट्रासाइक्लिन होती है, वो निमोनिया के लिए इफेक्टिव होती है और डिप्थीरिया के लिए इफेक्टिव होती है, और कुछ क्वांटिटीज में ये टाइफाइड के लिए भी स्लाइटली इफेक्टिव होती है। इसके अलावा टेट्रास ये जो क्लोरमफेनिकोल होता है, जो एक इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक होती है, वो क्या होती है, निमोनिया के लिए इफेक्टिव होती है बहुत अच्छे से, टाइफाइड के लिए भी अच्छे से इफेक्टिव होती है, और वी कैन ऑल्सो फाइंड इट इफेक्टिव अगेंस्ट डिप्थीरिया ऑल्सो। The mode of infect of killing is very important. The mode of killing of any kind of microorganism by antibiotic is very important, because अगर मोड ऑफ किलिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उसको अप्लाई कर रहे हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कैटेगरी में आता है, तो हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उस एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को इफेक्टिव होती है और उनको सेल वाल को डिग्रेड कर देती है। कुछ एंटीबायोटिक होती है जो सेल मेम्ब्रेन को बस्ट कर देती है, और कुछ एंटीबायोटिक होती है जो केमिकल रिएक्शन में इंटरफेयर करती है। तो उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। We can select any antibiotic on the basis of the mode of infections and mode of mode of the effect, and similarly the bacteria which is causing the disease. So these are the two factors for the choice of the antibiotic. So our lecture is over here. Thank you very much.